एक और चीज़ था कि हम लोग जब बोलते हैं कि जैसे हम लोग को कुछ-कुछ फंक्शंस है, जैसे गेट हिस्टोरिकल यूजर पर्सन फ्रॉम लोकल साइट। तो यहाँ लोकल साइट किसको बोल रहे हैं? जो हम लोग डीबी में रख ले रहे हैं, मतलब जो कैश कर ले रहे हैं उसको? लोकल तो साइट क्या है? शुरू में मतलब कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाया गया था कि शुरू में ये भी बात थी कि ईएसडीबी हम रिमोट साइट के लिए भी फेच करके लाएँगे, जो कि अभी होता नहीं है। तो जो फंक्शंस के नाम थे वो लोकल साइट और रिमोट साइट इस टाइप से शुरू में बन गए थे। तो वो अभी साइट तो एक ही है, मतलब वो एक ही साइट के करस्पॉन्डिंग मेटाडाटा करस्पॉन्डिंग वही डेटा हम शो करते हैं। तो फंक्शन के नाम में लोकल साइट पड़ा बट उसका कोई इसका सिग्निफिकेंस है नहीं लोकल साइट से। तो फिर So let's move on. Today we will see how to analyze and debug some customer issues, like the most common issues we face in the customer scenario, and how do we proceed on to debug those issues. So in general, the issues are classified in several segments. So one of the issue can be while enabling the HTTP or while launching the HTTP, we face some issues. So these issues are in or of one particular kind of issue. Another issue can be if ESDB is properly launched, then while reading and writing data, there can be some kind of latency due to which the data is not going as smoothly as possible in the DB server, and some latency is seen. Like when we have done the usage at, let's say, time T1, and the data is going on actually in DB at time T2. So there is some latency. So due to which there can be some inconsistencies in DB while doing a VELEC read query. Those kind of issues we will also kind of see how we cater to that. And also there can be some connection kind of issue that MySQL has some connection kind of limit that it will allow up to a connection limit, right? Connection limit client user. So in some cases, the connection currently is set as 500, but in some cases, if the connection is not properly closed, then it may happen that okay, the connection limit is already reached and there can be no further connections which can be made to the MySQL server. So how can we debug that, and how can we actually how we have solved that, and if going forward comes, how we can analyze those kind of issues. So these are some of the issues which we'll see. So to analyze that, so as we all know that to launch the HTTP, we have a command line of values admin enable HTTP. So enable HTTP, then values admin talks to the enterprise server and asks us to enable the HTTP. Enterprise server then launches a script file. Inside those script file, we have all the MySQL related commands present. So the script file is this one. This is the script file. Inside this, we have all the MySQL related commands through which we can launch the MySQL, do a ping on the server, shut down the MySQL server, and do a user creation and granting the permission of those kind of on those users. So all these MySQL related commands are wrapped onto this script file. So whenever we are getting an issue of ESDB installation and the issue related to ESDB shutdown or doing a troubleshoot on ESDB or any kind of installation or setup kind of issues we have in our ESDB, then actually this is the script file which gets invoked, and while running some of the commands, MySQL command, we must have faced some kind of issues. So the logs of these commands, std out and std error of this file goes on to ESDB underscore setup.log file. So this is the log file which gets created. And inside this log file, we have all the commands, MySQL commands, and the output is generated. In the case of uh,
a MySQL D ping command, we get the MySQL daemon is alive. The output of this command, the MySQL commands are captured in this file. And also some of the errors which MySQL command generates. So those errors are captured in a hostname.error file. So that file is present inside the VelociDB directory. Inside this VelociDB directory, you can see. So on whichever host we have done the ESDB installation, MySQL launches the locks the error in hostname.err file. So hostname, if we have launched the MySQL server on INDR 11, MySQL will pick this file. So inside this file, you can see all the logs done by MySQL. This is the fresh installation it is doing. After this, it is ready for connections. And when we issued a shutdown command at 12:10:14, it is showing that okay, normal shutdown is there. So in case of any error while doing launching of MySQL server, if there is some error, then you can refer to the hostname.err file to get the kind of error MySQL is throwing. And if sometimes the error is quite easy to understand and we can directly understand what is the error and we can fix that. And sometimes we need to take the help of MySQL documents and understand the issues. And also we sometimes find the resolution in those MySQL documents. So we try to integrate those things in our software automatically so that we do not need to face if the issue comes again, then those kind of things are handled automatically in the software. We do not need to again manually do interactive debug in that case. So this is the error file. So another kind of issue is the connection issue, which we talked about. So there is a connection limit, and if the connection somehow are not closing properly from the MySQL server, then there can be a case where MySQL will no longer accept the new connection because the connection limit is reached. So when you are doing a ESDB query, so first you need to make a ES connection with the MySQL server. So the connection interface is present in this file, enterprise directory, ESDB ESFace. So we have a MySQL C library integrated in our code. So we have MySQL provides some C functions. So these are some of the C functions through which we can provide the MySQL options and which we can directly interact with the ESDB MySQL server running in the background. So these are some of the C APIs which MySQL provides. So as you can see, so this is a function through which we make the connection with the ESDB server. So first we check if the connection is already present. MySQL ping, we are doing a MySQL ping on the MySQL connection pointer. So MySQL connection pointer, when we do a first time MySQL_init, we get a MySQL connection pointer. So this connection pointer is then used. It's kind of a class pointer. And this connection pointer is kind of library interface pointer. And this will be used for subsequent setting options or connecting to the ESDB, talking directly to the MySQL library. So this connection pointer will be used. So first, if it's a fresh installation, this MySQL connection will be done. So or otherwise, if it's not a fresh installation, then if we have already a connection pointer, then we will try to do a ping on this. If the server is running, MySQL ping returns 0. So it is a null check. And if it is already running, we just do a return of this because the connection is already made. And if the server is not running, then we try to read the ESDB config file in which the server socket DB connection information is present. And we read that file, we populate the member variables based on the options present in the file. Then we get the MySQL connection pointer. So it's a thread unsafe function. So that's why we have used mutex for this. So we have also added a comment from the MySQL documentation. So it is saying that, okay, MySQL init is not a thread safe function. So as we have seen that RESR in ES, in VELEC, we have multi-threading kind of system. So that's why we need to make our code thread safe also. So this connection interface library is used by all the clients and all the servers which are interacting with ESDB. So this needs to be a thread safe kind of library. And here we set some options like reconnect options. We are trying to reconnect once only. And connection timeout. What is the connection timeout? What is the read query timeout? What is the write query timeout? So based on client type, also we want to set different kind of timeouts. Maybe we want to set more read timeout for VELEC kind of client and less read timeout for RESR because we do not want to block RESR.
So we have accordingly we have the type of client also, and based on that we can specify the read timeout or write timeout. So after we have done this, after we have specified the connection client interface and client parameters, we now do a connect on those on the MySQL server through the options present in esdb.config file. Right? So we have used that and passed it to this API. And now the connection will be successfully made if this DB connection pointer is written as not null. So we will get that. So for per connection, what MySQL does is MySQL assigns a thread ID for every client connection. And when you run a query with every client with a client, then MySQL runs that query with that thread ID assigned to it. So we can get the thread ID with the help of this function. Right. After creating a connection, we need to select the database on which database we want to use. So that will run through this select database, which will directly run a MySQL query command. So this is how we make the connection with the enterprise server, with the ESDB server. And now what happens is, so we have a connection limit of, I explained that we have a connection limit of 500. And here we have seen that MySQL assigns a thread ID for every connection. So sometimes we have seen this in the customer and in our local case also, that what happens is, so we have specified a read timeout. And so suppose you are running a big query and you have specified a very low read timeout. So let's say your query is scanning 1,000,000 rows and the overall query execution time is, let's say, 10 seconds. And you have specified a read timeout of 5 seconds. So after 5 seconds, what will happen is the client will close the connection because the read timeout has hit, and client will assume that, okay, I have not received the reply from the MySQL server. It will directly close the connection. But what is happening at the end of MySQL is that MySQL has assigned a thread ID for that client connection. So MySQL is, after 5 seconds also, MySQL is still running the query inside MySQL server corresponding to that thread ID. So what is happening is, if your query is very big and it is taking around like 1 hour because of some kind of issues like deadlock kind of issues we have seen, like the query wants to access some rows in which some other query has taken lock. So this query will not proceed, right? And what will happen that MySQL will keep on assigning a thread ID until this query completes. So now, if this case happens again and again, then you will have a case where MySQL, there is a case where all the connection limit is being exhausted because the queries are not moving forward due to deadlock and interdependencies. And you will not be able to create a fresh connection with the ESDB server. So MySQL server will just give a message that, okay, the connection limit is reached, and there the MySQL connection API will just return false. So that will result in a big error that if a new power on comes and power on wants to write the information, then if connection is refused, that means that for that emitter, no usage information will be recorded. And that can be a big issue. So to address those kind of concerns, what we have done here is, so when we execute a query, and after the query execute, so this is the MySQL underscore query is the C API through which we execute the query. This ASQL query is the string format, the select from where kind of query. And this is the connection pointer which we have got in the correct call. So through this API, so when the read timeout or write timeout or connection timeout, any kind of error hits in this query, you can get the error code through this MySQL underscore error number. And based on the, if we are getting the kind of error as CR server gone error or CR server lost, these kind of error comes when we hit a kind of read timeout. So here now, if you're directly closing the MySQL connection pointer and you are not trying to kill the query which is running on the ESDB side, the MySQL side, then MySQL will not be closing the connection until the query execution is finished. So what we need to do is explicitly, if such a case comes, then we need to explicitly kill the query which is running for this thread ID in the MySQL server, so that the MySQL closes the connection and releases the thread ID at its end also, and can then accept a fresh connection. So what we are doing here is, anyone have any question? Shivam, one question first. Mhm. So
This timeout is for a query, right? Right, Now query. the connection has been made. So the query is timed out. Mhm. Are we saying that if the query gets timed out, we are deleting the connection and we are saying that we will make a new connection next time? And that's why the connections are getting exhausted or something else? So there are two cases. That's a good question. So there are two cases here. So when we kill a query, there are two ways in which we can kill a query. Either we can kill the complete connection or we can kill the thread ID, which is running that query only. Right? So what we do here is So we do not thread ID is of a connection or the thread ID is of a query? of a That's what query. I'm trying. It's of a query. For every query, the client, the MySQL will assign a thread ID to it to run that query. And based on the number of thread IDs, the connection limit is based on number of thread IDs. So at max, you can say that at max 500 queries can run in parallel. The maximum connection limit that we have specified. So if a client is running one query, it cannot run any other query unless and until it gets a response from MySQL server. Right. Yeah, that's right. Yeah. And that's where And I'm also, asking that. Let's say I have made a connection with the SQL. So SQL, first thing is SQL is assigning a thread for that connection. That's what I understood. Now, if I make a query, so it is executing another thread, as you're saying that there is another thread it is executing so that the query can be executed on that. Now, if I, from my side, if I start making another query, it will be errored out, right? yeah, SQL will not allow MySQL, another, yeah, right. right? So that With the is same connection pointer, you cannot execute two queries in parallel. That is the yes. concept. So if I kill this query, Mhm. okay, after that I can make a query or not? Yes, you can make a query. If so, there are two ways in which you can kill the query. If you are doing a kill query and the thread ID, then what you are saying is that stop the execution of the query at the server side, right? And if you directly do a kill on thread ID, then it will break the connection also. So you will then after this you will get a null MySQL connection pointer. So what we are doing is at the time of read timeout, we are just explicitly killing that query for this thread ID. So We are that's not where closing the I'm, connection. so Shivam, then I'm getting a little confused that how we were getting an issue earlier. So we faced an issue that said that, okay, if you are not stopping the connection on the server side, the threads are getting reaching the threshold limit. But how that was happening? Were we earlier like in case the query timeout happened? Uh, So were we consider doing that? We used to close the connection from our side and create a new connection. That's what we were doing earlier. yes. So earlier what was happening as the client will close the connection. So it is getting this error. So let's say a Velec client has come, right? And when a Velec client has come, it will start executing the query. And when it gets an error, the Velec client will go. So the connection will be closed at that time. But the query which is executing at the end of my ESDB server, that query will not be finished. Because if it is a long query, the connection timeout will happen at the client end. So client has closed its connection, but the query which is running for that thread ID has not been cleared by the server. So it can happen with the Velec, but it should not generally happen with the resource server or anything like that. Is that what you're saying? So with resource server also, it can happen that if Velec is reading a row and resource server is trying to update that row, then my resource server will block on that because Velec is having a read lock on that row, right? So it may happen that if VELEC query is taking a very huge amount of time, then resource server thread it can also be possible that resource server may not be able to execute its own query, and resource server will directly. So what will happen in that case? We will do an explicit kill of that query from resource server side for every connection, right? So that the resource server can execute a fresh query and the next query after that. Otherwise, the resource server query will not move. Okay. But in case resource server side, if a query gets timed out, let's assume. Mhm. So in that case, you are killing that query Right. and using the same connection in general.
Yeah, Right. so we are not initiating a fresh connection. We are getting a same connection. So if we will do instead of this, if we will do kill of thread ID, then this will mean that we are closing the connection. I've written a comment that kill query thread ID will just terminate the running SQL query, leaving connection intact. And if we are not specifying query here, then it will close the connection instead. So this would mean that, okay, so we have now killed the query and another query which was blocked on this query can now proceed. Also, that will also release the lock for the previous query. So another query also, right? And after, so then we need to, after we have killed the query, we need to get a fresh thread ID from this function, because this kill query statement is closing, is again calling the MySQL_init function, and it generates a new thread ID for the same connection pointer. Right? This part is clear. I think it is not creating a new thread. I think Yeah, as soon as you kill a query, new thread will automatically generate it. And this MySQL thread ID will just tell you the ID of the thread which is having this SQL connection now, right? Yeah, so inside this MySQL_query, this is internally calling MySQL_init. So this will, MySQL_init will generate a thread ID for you for every connection. So it is closing the previous thread ID and assigning a new thread ID now. Earlier, let's say thread ID was 100, and now after killing the query, when we will call this function, we will get thread ID as 101 maybe. Not the same thread ID. शिवम सर, यहाँ पे जो ये टाइम आउट्स की वैल्यूज है, ये तो क्वेरी, लेट्स से ये क्वेरी टाइम आउट्स है, रीड राइट टाइम आउट्स। तो वो वाले टाइम आउट क्या था जो हम लोग MySQL कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखते थे सर्वर साइड में? वो MySQL ये क्लाइंट साइड के टाइम आउट है। So this is for client. और वो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा है वो MySQL daemon के है कि हमारा अगर कोई इंटरैक्टिव वेट टाइम आउट है या इंटरैक्टिव कनेक्शन के लिए है, मतलब MySQL daemon साइड के टाइम आउट वैल्यूज हमने स्पेसिफाई किए हैं वहां पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। और ये क्लाइंट साइड के टाइम आउट वैल्यूज है कि क्लाइंट कनेक्शन कब क्लोज करेगा या क्लाइंट के साइड से क्या आप पैरामीटर्स पास करें। ठीक है, और वो सर्वर साइड में तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू असाइन करके रखा था। हाँ, वो इंटरैक्टिव वेट टाइम आउट के लिए कर रखा है कि अगर कोई क्वेरी नहीं भी आ रही है तो भी कनेक्शन डायरेक्टली MySQL क्लोज ना करते। This is that. So इसको हम debug कर सकते हैं। So I have some कुछ के लिए बनाया था। ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा। तो कनेक्शन को डीबग करने के लिए देयर इज अ सिंपल कमांड। सो MySQL पे वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द MySQL थ्रू MySQL सर्वर थ्रू MySQL client command line, and after connecting we can directly run this show full processes. So it will show in the output what all connections are currently present with the MySQL server, what all client connections are present, and which connection is doing what. So this is showing the ID is the thread ID which we get. This user is the user Veloci or root user. Maybe we have two users in our system. Host is the host name, that is DB. This is the command. So generally when the connection client is not doing anything, the state will be shown as sleep. If a query's execution is going on, that will show the state command as query. Right? The time will show the time elapsed running this query. So in this example, it is showing that, okay, 749 seconds have elapsed since the query has started and when this output was captured. So this is 749. So this is the state what it is doing. So it is saying that, okay, sending data, MySQL is sending data, generating, reading the database, reading the table and getting the data from the table. Info is the query. So it will show in the query what generated is null. And if in case the query is running,
with the connection, it will show which query is running. So this is the this is a very important command in which we can see what all connections are present in the MySQL server and which connection is doing what. So after this, if we found out that, okay, so some of the queries are interdependent on each other, or if a query is running for very long and we are not expecting any result for it now, we can directly kill the query, kill query thread ID. So this will just terminate the query which is running on the server side. And if we specified kill thread ID, in fact, the connection with the client, with the server will also close. So there is a small difference between this and this. Also, in the case of deadlock, when we were discussing that, I told that how we can check for the deadlock. So in this case, why this query was not running very fast was it may be possible that some deadlock was observed and some query is trying to access the read log while another query is updating or writing on that row. So that will result in some synchronization problem and can result in deadlock also. So when we face these kind of issues, then we want to see why these queries, which in general runs very fast, are taking such huge amount of time. Maybe we want to check it from the deadlock angle also. So we see show engine availability status. So in that case, we will see what all transactions are running, what all transactions are running, and which transaction is locking what. So that I have shown you through the previous example when we were covering the deadlock. And this query is showing you which tables are currently in use and how many threads or how many connections are trying to access this table. So here it is showing that emulator config change table in use 175. That means, okay, 175 connections are actively trying to read or write data on this table, accessing this table. And if there is any kind of deadlock accessing this table, the name lock field will show, okay, so 1 or 2 connection or 5 connections are blocking on this table because of some potential deadlock problem. Also, if we want to see the last execution, so if we want to see whether query I have written is what is the performance of that query, whether the query I've written is a very good performance wise query, or the syntax wise it is very good, or I can maybe potentially rewrite the query better. So I want to track the last the execution time of the query. So simply there's a option set profiling is equal to 1. And inside, when you execute the query, you can run the show profiles and will show the execution of the query, that how much time the query is taken, which rows were accessed, which indexes were used for the fetching the information. So all this sort of information will be reflected in this. Shivam, just one thing. On point 4, as you mentioned that, okay, these tables are open or in use. Can we see the kind of a process which is using which table? So that we can see through this example, right? So this will show the this is query not example. showing the Okay, this will show the complete query. Okay, this is the table information. Okay, we can show from here. Also, if there is some issue, then we can see the output through this. And in case of some deadlock, it will show the complete query information also, that which transaction, which query was executing, and it is blocked on what. Also, there is one other information. So here we can see what all transactions are running. So we can see this through this query. So this is showing it, okay, inside this InnoDB transaction table, inside this database information schema. So this database, we have already seen that this is provided by default and it contains some metadata information kept by MySQL. So the metadata information is like this kind of information that, okay, what is the current state of MySQL, what all transactions are running in what state, what else queries are running. These kind of information are captured in internal databases of MySQL. So we can also query. So these these databases can only be accessed through root user, because when we were creating the Veloce user, we have not provided any permission on these internal databases on Veloce user.
So we need to log in with root user ID to access these databases. So this will show that, okay, this transaction, so this is the query which is running. It is fetching rows, all the different sort of parameters, like when the transaction was started, what is the current state of this, a transaction ID of this can be mapped with this output also. Transaction ID, you can see it here also. This is the transaction ID. And so this is the information which we can track also for a running ESDB server. You can see what all transactions are in what state. So this is also handy while debugging the connection. And this is also one way. So for checking for deadlock, so one way is we can directly get the stats through this command, and we can also get the stats through this command also. This will show that, okay, what are the lock dependencies and which transaction is locking which table, and which other transaction is waiting on this resource for which the lock was required by previous transaction. This sort of information is also captured through this command. So there is one more information I actually. So to automate completely all these stats, I have created a bash file. I think it is not yet checked in our code, but it can be used to directly run into the customer and get all the meaningful stats. So what this script file is taking is an emulator file. It is taking an output file in which it will generate all the stats. Inside this med emulator, the config file is getting the config file to create a connection. And the installation directory is present in the MySQL configuration. It is using that to access the MySQL, the executables. So we are capturing the complete process info, like which all connections are running, which all tables are in use, open table info, the lock info to the command, the transaction info. So this is capturing the transaction info. This is capturing the InnoDB engine status. This will also capture the status of all the transactions which are running and leading to the different log. So this is the script file which was created to capture to run at the customer end sometimes when we face some issues like these, and we can directly run this script inside the customer end and get the meaningful stats, and maybe we can debug that to find out. So sometimes it may happen that the information can be directly we can directly debug the kind of error through the log file sent by user. Log files I'll explain is my ESDB setup.log, connection.hostname.error, these kind of files, or through the different log files. So let's touch upon the log files which different servers are. So RESR, so for every emulator, RESR writes the HistoryDB logs in this file. So some of the logs gets written in this file. So this is completely for HistoryDB related command. Inside this, we can see we have failed to execute query. So this is kind of error which you can see. Create procedure, and why? So error message is saying that, okay, this procedure already exists. This procedure was already existing. That's why we get an error of failed to execute. And the error code is 1304 in this case. So like this phase, we can also debug. So like when we do yesterday we saw that while doing a ES reservation or manual reservation, what kind of functions are called, how RESR is managing the complete usage information. So those logs are captured in this file by RESR. Also, you can see in this table, there is this query, there is an error of that, okay, unknown column emulator in where clause. सकते हैं एक बार चेक करना इसको ये क्यों आ रहा है unknown column emulator in where clause. Okay, for this query. सर ठीक है, मैं इसको देख के बता दूंगा. हाँ, इसको एक बार चेक करिएगा. So these are some of the errors which we can potentially see through this log. So this is for RESR, और RESR की generally you know that RESR के जो logs होते हैं वो जो log file होती है वो ये वाली log file होती है in general. RESR की reservation specific. तो इसमें ही logs में ही जो thread related information होती है, जो thread से जो error आती है RESR के threads के,
तो वो इन्फॉर्मेशन भी इसी लॉग फाइल में हम कैप्चर करते हैं, जब थ्रेड हमने क्रिएट कर लिया या कुछ फेलियर आया फेल का कोई केस, तो कुछ फेल जैसे ये ESDB से स्टेटस आ रहा है कि ESDB इनेबल्ड है, डिसेबल्ड फॉल्स है, तो कुछ ESDB के मैसेजेस भी यहाँ पर लॉग होते हैं इस फाइल में। थ्रेड से कुछ एरर आती है अगर क्वेरी एग्जीक्यूशन में, जो लॉग करते हैं वो भी इसी फाइल में लॉग होता है हमारा। तो इस फाइल को भी हम ट्रैक कर सकते हैं फॉर सीइंग द एरर्स which is reported by resource server while interacting with ESDB। और जो ES के लॉग्स होते हैं, ES के लॉग्स तो इस फाइल में बनते हैं, और इसके जो ESDB के लॉग्स हैं वो भी इसी फाइल में राउट होते हैं ES के। तो इनेबल ESDB, डिसेबल ESDB सारी कमांड्स जो है ES के थ्रू ही एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे इनेबल ESDB है, यहाँ पर अगर कुछ स्क्रिप्ट लॉन्च कर रहा है, कुछ एरर अगर आएगी तो यहाँ पर लॉग हो जाएगी हमारे, यहाँ पर लॉग फाइल में चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हमने ऑक्सिलरी थ्रेड लॉन्च किया यूटिलिटी राइट करने के लिए, सैनिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये यहाँ पर हम क्वेरीज कुछ रन कर रहे हैं, सैनिटी वाली अपडेट बोर्ड चेंज कनेक्टेड है तो उसकी पावर इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो लॉग फाइल्स हैं, ये अपने ESDB के स्टैट्स की फाइल लॉग्स यहाँ पे डन करता है। वेलेक के जो लॉग्स होते हैं, वेलेक के लॉग्स तो सिंपल। सर एक बार और वो प्रॉक का नेम दिखाइएगा ना, क्या था वो नेम, प्रॉक नेम? ये प्रॉक पावर मोर अपडेट, आप ये फाइल देख लो, मेरे एरिया में है। इसको चैट में डाल दीजिए। बट सत्या, इट सीम्स ये मेंटेनेंस वाले चेंज की वजह से हुआ है। दिस विल बिकम ये अ थोड़ा प्रॉब्लम। पुराना है, 23 जुलाई का है, तो अभी एक बार स्टेट अभी चेक कर लेते हैं क्या है, टेस्ट में देखें। 2021 का है वो तो, जुलाई, देखते हैं। अभी देख लेना, अभी कोई इशू नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये तो दिख रहा है 13 अप्रैल का जो है, यहाँ पर तो कुछ रिपोर्टेड नहीं है, पोटेंशियली अभी नहीं होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी जस्ट किसी केस में हिट तो नहीं होगा। चैट पे डाल इससे ऊपर ये फेल टू एग्जीक्यूट क्या है शिव? सर ये वही चीज है जो हम लोग रिसोर्स ये सर्वर से करते हैं कि प्रॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, मतलब इसलिए आ रहा है। हम ड्रॉप नहीं करते ना प्रॉक, प्रॉक को हम ओवरराइट नहीं करते हैं। प्रॉक के लिए रिसोर्स सर्वर आता है रजिस्टर करने के लिए, और उसको मिल जाता है कि ऑलरेडी रजिस्ट्रिंग है, तो वो एरर करके वो निकल जाता है प्रॉक करके। शिवम ये थोड़ा सा दोबारा समझाओगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट है मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? एक जो हम स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं ना, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं और सेट ऑफ क्वेरीज लिखते हैं, तो हम उसको एक स्टोर प्रोसीजर के थ्रू एक प्रॉक बोल देते हैं। स्टोर प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म में प्रॉक बोल देते हैं। इसको हमें रजिस्टर करना होता है, बिफोर यूज करने के लिए हमें रजिस्टर करना होता है ESDB सर्वर के अंदर। तो इसको रजिस्ट्रेशन एक बार, जैसे इस प्रॉक का जो यूजर है वो RESR भी है और वेलियस भी है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन जो प्रॉक का है वो RESR को भी करना पड़ेगा और ES को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ES बाद में आया, आपने ES पे रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया और ES बाद में आ रहा है, RESR ने पहले यूज करने चला गया, तो रजिस्ट्रेशन अगर होगा नहीं तो एरर कर देगा। तो हमें दोनों साइड से रजिस्ट्रेशन ट्राई करना पड़ेगा। बट जो पावर ऑन है वो पावर ऑन पुराने से भी होते हैं। अब अगर हमने ये प्रॉक जो है, ये प्रॉक अगर पुराने सॉफ्टवेयर में भी है, नए सॉफ्टवेयर में भी है, नए सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज है इसमें, इसकी डेफिनेशन में कुछ अपडेट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमेशा लेटेस्ट डेफिनेशन के साथ ही ये प्रॉक चले। तो जो पावर ऑन अगर पुराना आएगा तो पुराना पावर ऑन इसकी डेफिनेशन को ओवरराइट कर देगा, राइट, क्योंकि उसके पास पुरानी डेफिनेशन है पुराने सॉफ्टवेयर में। और ES तो हम हमेशा बोलते हैं लेटेस्ट रहेगा, तो ES के थ्रू ही रिजर्वेशन हम करना चाहते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस प्रॉक का। तो हमने ये बोला हुआ है कि ES जो है वो हमेशा जो प्रॉक की डेफिनेशन है उसको ओवरराइट करेगा, मतलब पहले ड्रॉप करेगा इसकी डेफिनेशन, फिर नई डेफिनेशन को रजिस्टर करेगा। लेकिन जो रिसोर्स सर्वर है, रिसोर्स सर्वर सिर्फ प्रॉक की रजिस्ट्रेशन करने जाएगा, कभी ड्रॉप नहीं करेगा। तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ES ने पहले से रजिस्टर कर दिया ये प्रॉक, और रिसोर्स सर्वर बाद में पावर ऑन हुआ, वो फिर से रजिस्टर करने जाएगा, तो उसको ये एरर आ सकती है कि ये प्रॉक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इस प्रॉक की डेफिनेशन दिखा सकते हो क्या है? यही तो है, यही तो है definition। मतलब भास्कर, हाउ डज इट मैटर? सी द पॉइंट ये है कि रिसोर्स सर्वर साइड से वो ये मेक श्योर कर रहा है रिसोर्स सर्वर की जो मैं प्रॉक यूज करने वाला हूँ वो एग्जिस्ट करता है ना, एंड इसीलिए वो क्रिएट प्रॉक करता है।
एंड उसने ये देखा कि क्रिएट प्रॉम्प्ट जो है वो पहले से किसी ने कर रखा है, देन इट्स फाइन, वो कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, गो इट, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो इंटरनल प्रॉम्प्ट डेफिनेशन तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब प्रॉम्प्ट में तो उसको देख के तो मतलब उसको तो समझना पड़ेगा कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या चीज। मैं जस्ट एग्जांपल देख रहा था, ठीक है। क्रिएट नहीं करोगे ना, ये होता है आशीष, शो क्रिएट प्रोसीजर, तब ये कोई दूसरा व्यू process करने के होता लिए है। भी क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं डेफिनेशन देख रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, व्यू करने के लिए भी क्रिएट करते हैं, शो क्रिएट होता है। हाँ, शो क्रिएट प्रोसीजर, शो क्रिएट टेबल होता है, शो क्रिएट प्रोसीजर होता है। सर व्यू तो- करने के लिए शो लगाते हैं, और सिर्फ क्रिएट करना तो क्रिएट से होता है, शो उसमें नहीं होता कीवर्ड, तो एक्चुअली वो शो क्रिएट क्रिएट प्रोसीजर ही होता है ना, दूसरा शो solve कर करने सकते के हैं। लिए, क्रिएट करना चाहें तो शो नहीं लगाते हैं फिर। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, मैं क्रिएट क्यों लिखूंगा अगर मुझे शो ही करना है तो, मैं वो पूछ रहा था। तो शो प्रोसीड्यूर स्टेटस भी करते हैं, और शो प्रोसीड्यूर क्लिक करते हैं, तो उससे सिर्फ हमको नाम आता है। क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन के टाइम में जो डेफिनेशन था वो दिखाता है, ओके तो उसी का कुछ कुछ वर्जन है कि शो प्रोसीड्यूर स्टेटस। अच्छा, एक second। लंबा select किया, database select नहीं किया, अच्छा है। यस, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया था, तो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसीजर होते हैं वो डेटाबेस के अंदर ही होते हैं। यहाँ मैंने करेक्शन बनाया था, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया था, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। ये कमांड होती है, ये दिखा रहा है आपको, ये डेफिनेशन है, एक कमांड शो क्रिएट प्रोसीजर ही है, खास करके जो था ये बस ये डेफिनेशन है इसकी प्रॉम्प्ट की, आप देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू शो क्रिएट प्रोसीजर। और कोई टेबल का देखना है तो शो क्रिएट टेबल, और टेबल नेम भी दे सकते हैं, टेबल की डेफिनेशन देखना है। टेबल क्या है फिर? सो क्या डिस्कस कर रहे थे आप? टेबल कर देता। अभी आप आरईआर लॉग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अभी आधा ही हुआ। अच्छा, तो आरईआर लॉग नहीं, आरईआर लॉग कवर हो गया हमारा। एक ये हम बात कर रहे थे कि दो लॉग फाइल होती है, एक आरएससी सर्वर डॉट लॉग और एक आरईआर डॉट मेटा डॉट लॉग। तो आरईआर के लॉग्स यहाँ पे कैप्चर्ड होते हैं, जो ईएस होते हैं, ईएस के लॉग्स तो यहीं पर कैप्चर होते हैं, और जो स्क्रिप्ट के लॉग्स होते हैं वो ESDB अंडरस्कोर सेटअप डॉट लॉग में होते हैं। इसके अलावा जो वेलियस एडमिन के लॉग होते हैं, और होते हैं इसमें होते हैं इनेबल स्टीडीपी दिया है या कुछ दिया है, अगर कुछ इसके साइड से कुछ प्रॉब्लम है, इसको टाइम आउट हो गया, ये सब कनेक्शन नहीं हो पा रहा, इस टाइप की कुछ एरर है, तो ये यहाँ पर EF एडमिन के लॉग्स हैं। जो वेलेक के लॉग्स होते हैं वो डायरेक्टली जहाँ जिस कमांड जिस पाथ से हम वेलेक रन करते हैं, तो PWD के अंदर ही वेलोची डॉट लॉग तो वेलोची डॉट लॉग के अंदर इसी ट्रेस डॉट लॉग के अंदर ES के लॉग होते हैं। तो ES जैसे कॉम स्टार्ट की क्वेरी करता है, कॉम स्टार्ट की क्वेरी में पहले कनेक्ट करने जाएगा ESDB सर्वर के साथ, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो ES से कनेक्शन नहीं बनाएगा, इंटरप्राइज सर्वर से। अगर यहाँ पर कनेक्शन फेल होता है तो इंटरप्राइज सर्वर से कनेक्शन बनाता है और उसको बोलता है कि ESDB लॉन्च करके आओ। फिर ESDB लॉन्च करके Velius informs back to Velic that okay, ESDB installation is now finished. Then ES goes on, Velec goes on to again initiate the connection with the ESDB server and then proceeds to do a read query from the system. तो ये लॉग फाइल यहाँ पर होती है। तो RTS जो होता है, RTS भी वेलेक के थ्रू, ये मैं देखा था कि वेलेक के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन राइट करता है DB में सेशन स्टार्ट्स की। तो उसका भी जो है, जो डिजाइन पाथ है, डिजाइन पाथ के अंदर वेलोची डॉट लॉग EC ट्रेस डॉट लॉग फाइल बनेगी, उसमें ही उसके जो लॉग्स होते हैं फंक्शन के वो कैप्चर हो जाएंगे। तो इसके जो लॉग्स आएंगे राइट
तो यहाँ पर राइट हो गया, मतलब ये जो ब्लॉक्स में टी लॉग डाले हुए हैं यहाँ पर, ये सारे तो veloci.log इसी trace.log में मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास RESR के हो गए, RTS के हो गए, वेलेक के हो, RTS तो वेलेक के थ्रू ही करता है, वेलेक के हो गए, ES एडमिन के हो गए, ES के हो गए, RESR के हो गए। तो दीज आर द मेन प्रोसेस। और जो MySQL के इंटरनल लॉग्स हमने देख लिए कि कैसे कैप्चर होते हैं, क्या इंफॉर्मेशन किस लॉग में होती है। तो दिस इज व्हाट ESDB का जनरली। और एक अच्छा एक टाइप ऑफ इशू ये होता है जनरली जो आता है कि हमने ये भी देखा था कि RESR, we know that RESR writes the usage information in ESDB। और अगर इन केस ऐसा कभी कभी होता है कि वीकेंड पे कस्टमर एंड पे रिग्रेशन चलते हैं, तो मतलब बहुत छोटी छोटी डिजाइन चलती हैं और वो सिंगल बर्स्ट में बहुत सारी, मतलब मे बी 10,000 ऑफ एमुलेशंस चलते हैं। तो दैट मीन्स कि हर पर एमुलेशन हमें पावर ऑन की इंफॉर्मेशन, अगर पावर ऑन हुआ एमुलेटर तो पावर ऑन की इंफॉर्मेशन रिसोर्स सर्वर लिखेगा, यूसेज की सेशन कनेक्ट की इंफॉर्मेशन लिखेगा, सेशन डिस्कनेक्ट की इंफॉर्मेशन लिखेगा। और पर जो कनेक्शन जब इंफॉर्मेशन लिखेगा तो ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे मल्टीपल सेट ऑफ क्वेरीज होती हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सेट ऑफ क्वेरीज व्हिच गोज ऑन अगर एमुलेशन पैरेलल में बहुत सारे चल रहे होंगे। सो और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल बोर्ड्स हैं, एक बड़ा एमुलेटर है, लेट्स से मैक्सिमम एमुलेटर 64 बोर्ड्स हैं और 64 पोटेंशियल पैरेलल डिजाइंस इन पैरेलल चल सकती है स्ट्रैटो पर। स्ट्रैटो प्लस पे तो हाफ बोर्ड डिजाइंस भी हैं, तो तब भी हाफ बोर्ड में भी सिंगल हाफ बोर्ड ही चलती है। तो 64 ही पैरेलल में चल सकती है डिजाइन पैरेलल में। तो 64 सेशंस चल सकते हैं एक एमुलेटर के, तो बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो शुरू में हमने ये देखा था, एक प्रॉब्लम आई थी कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्स सर्वर राइट करने आता है, और वो जो है हमने देखा रिसोर्स सर्वर का फ्लो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन जो सेकेंडरी थ्रेड चल रहा है परसिस्टेंट वाला उसको भेजता रहता है और वो वन बाय वन कंज्यूम करके राइट करता रहता है डीबी में इन्फॉर्मेशन को। तो अगर हमारा जो टेबल है और जो क्वेरी का हमारा एक्सेस पैटर्न है और अपडेट पैटर्न है, अगर वो हमारा प्रॉपरली अगर डिजाइन नहीं है और प्रॉपरली सही नहीं है, तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम कंटिन्यूसली बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं एक एक करके, तो और इधर से पैरेलल में भी दूसरे एमुलेटर्स के लिए भी सेम टेबल यूज हो रही है MySQL में। तो जनरल यूसेज टेबल में एमुलेटर 1 का भी डेटा है, एमुलेटर 2 का भी डेटा है। एमुलेटर 2 वाला अगर उस टेबल को एक्सेस कर रहा है और एमुलेटर 1 वाला भी सेम टेबल को एक्सेस कर रहा है और बहुत सारा डेटा एक साथ ही दोनों राइट कर रहे हैं, तो इट मे हैपन दैट कि जो क्वेरी की स्पीड हमारी राइट करने की वो स्लो हो जाए, क्योंकि टेबल बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है और कई सारे एमुलेटर एक साथ पैरेलल में एक्सेस कर रहे हैं। तो जो एमुलेटर जो nth एमुलेटर है उसको साइकिल मिलने में लेट्स से कुछ टाइम लैप्स हो जा रहा है जब तक कि उसकी साइकिल आ रही है राइट करने की इस टेबल पर। तो ये इसकी जो क्वेरी फ्लशिंग है वो स्लो हो सकती है। उस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि हमने सेशन चलाया है, अभी चलाया सेशन, बट जो हमारी बैकलॉग ऑफ क्वेरीज जो पड़ी हुई है इसकी क्यू में वो बहुत सारी क्वेरीज पड़ी हुई हैं। तो पहले उनको वन बाय वन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर पे क्यू में पड़ी हुई है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर पे फ्लश करेगा। तो आपकी जो क्वेरी अभी एग्जीक्यूट हुई है वो भी हो सकता है क्यू में आपकी 0th इंडेक्स पे इंसर्ट ना हो, वो भी हो सकता है कि 1000th इंडेक्स पे इंसर्ट हो, क्योंकि आपकी पहले से ही 999 क्वेरीज पड़ी हुई है क्यू में। और जब आपका नंबर आए तो अभी आपने T1 टाइम पर एमुलेशन रन किया है, और जब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होने का नंबर आया रिसोर्स सेवन एग्जीक्यूट करने गया तो उसको टाइम स्टैम्प मिला T2 टाइम स्टैम्प पे वो राइट कर पाया। तो अगर आपने T1 और T2 के बीच में आपने क्वेरी की, रीड क्वेरी की, तो मे बी पॉसिबल कि आपको अपना एमुलेशन का डेटा मिले ही नहीं। यूजर कैन कंप्लेन कि मेरे तो सेशन का इन्फॉर्मेशन गई का, क्योंकि सेशन तो प्रॉपरली चला था, एमुलेशन प्रॉपरली रन हुआ, फिनिश भी हो गया, बट मेरी यूसेज की इन्फॉर्मेशन ESDB में ट्रैक क्यों नहीं हुई। तो ये हमने प्रॉब्लम देखी थी कि रिसोर्स सर्वर में डेटा फ्लशिंग बहुत स्लो हो रही थी। तो फिर हमने उसमें ये एनालाइज किया था, तो ये कुछ प्रॉब्लम ये आई थी कि जो डेडलॉक बहुत हो रहे थे क्वेरीज में, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए वेट बहुत करना पड़ रहा था। वेट इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि जो हमारी जो क्वेरीज लिखी हुई है उसमें हमारे टेबल्स में इंडेक्सेस बिल्ड नहीं थे। इंडेक्सेस अगर बिल्ड नहीं होते और मैं अगर मान लो कोई क्वेरी को मैं रन करूंगा और मुझे कोई सेट ऑफ वेयर क्लॉज लिखा हुआ है और वो मेरी क्वेरी में अगर टेबल में 1 मिलियन एंट्रीज है और मैंने इंडेक्सेस बिल्ड नहीं किया और वो 1000th नंबर पे है, तो वो क्या करेगा 1 से लेकर 1000 तक के सारी क्वेरीज सारे रोज को स्कैन करेगा। तो सीक्वेंशियल रन होता है, तो वो बहुत स्लो होता है। और अगर मैंने इंडेक्सेस बिल्ड कर दिया तो मेरे पास एक तरह से पॉइंटर्स है कि मुझे पता है इस एमुलेटर का डेटा किस किस इंडेक्सेस से पड़ा हुआ है, ये मेरे पास प्री कंप्यूटर रिजल्ट पड़ा हुआ है मेरे पास पहले से, तो मैं डायरेक्टली उन रोज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरा इस तरह से अगर मैं इंडेक्सिंग अगर प्रॉपरली बिल्ड कर रखी है मेरे सिस्टम में, तो मेरा जो जो क्वेरी है उसका जो रीड टाइम है वो बहुत फास्ट होगा। तो अगर रीड फास्ट होगा, मुझे कोई क्वेरी करनी है जिसमें मैं पहले रीड करके राइट करता हूँ,
तो अगर रीड फास्ट होगा मेरा राइट भी उसका जल्दी से फास्ट हो जाएगा। तो मेरा जो बाकी जो ट्रांजेक्शन वेट कर रहे हैं मेरे ट्रांजेक्शन फिनिश होने के, वो ट्रांजेक्शन भी जल्दी फिनिश हो पाएंगे। तो मेरा जो क्वेरी का जो ओवरऑल टर्न अराउंड रेशियो है वो काफी बेटर इंप्रूव हो सकता है। तो इसके लिए हम यही करते हैं कि हमने इंडेक्सिंग बिल्ड की थी हमने रिसेंट 21 में, कि हमने कई सारे टेबल्स को हमें रीस्ट्रक्चर किया, जिसके लिए आपने अंडरस्कोर ओल्ड आपने देखा होगा कि कुछ टेबल्स के नेम तो सेम है लेकिन अंडरस्कोर ओल्ड प्रीफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है। तो इसीलिए लगा हुआ है कि जो हमने पुरानी टेबल्स थी जिसमें इंडेक्सिंग नहीं थे उसको हमने अंडरस्कोर ओल्ड बोल दिया है, और जो नई टेबल्स थे सेम फॉर्मेट रख के कुछ कुछ चीजों को हमने प्रॉपर्ली उसको इंडेक्सिंग बिल्ड करके कुछ रोज को हमने कुछ कीज हमने इंसर्ट उसमें प्रॉपर्ली बना दी, कुछ डेटा को हमने मर्ज कर दिया किसी और टेबल के साथ में। इस तरह से करके हमने इंडेक्सिंग बिल्ड कर दी सिस्टम में, जिससे कि हमारी जो ओवरऑल जो क्वेरी का राइट रेशियो है और रीड रेशियो है वेलेक के थ्रू वो काफी बेटर इंप्रूव हो जाए। तो हमें रीड में भी काफी अच्छा इससे परफॉर्मेंस गेन मिला था, और राइट में भी हमारा जो रिसोर्स सर्वर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि क्वेरी जो बॉटलनेक बनती जा रही है और राइट नहीं कर पा रहा, तो थ्रेड जो हमारा एक तरह से ब्लॉक होता जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी आनी बंद हो। तो दिस वाज काइंड ऑफ वन गुड एनहांसमेंट वी हैव डन इन V21, जिससे कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने मतलब इसको पॉट की थी और उसको हमने फिक्स किया था। तो थोड़ा सा इसमें रीडिजाइनिंग ऑफ स्कीमा हमने ट्राई करा। आई थिंक इसी तरह के इश्यूज आते हैं, बाकी तो लॉग फाइल्स में देख करके और थोड़ा सा कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन को देख करके कई बार हमें लॉग्स के थ्रू समझ में नहीं आता, तो हमें कस्टमर से वेबएक्स रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि उनके डीबी में देखना पड़ता है कि डीबी में डेटा क्या लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वेलेक में डेटा गलत आ रहा है या रिसोर्स सर्वर प्रॉपर्ली डेटा राइट नहीं कर पा रहा, क्या चल रहा है डीबी के अंदर। तो वेबएक्स रिक्वेस्ट करके अगर कनेक्शन टाइप का है तो हम स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं या हम कुछ स्टार्ट्स देख लेते हैं वहां पर। टेबल में लॉगिन करके हम टेबल में डेटा वगैरह देख लेते हैं। कई बार अगर टेबल में कुछ करप्शन दिखता है हमें क्योंकि हमारा कुछ बग है पहले के रिलीजेस का या कहीं पर, तो हमें वो डीबी वेबएक्स लेकर के उसमें डीबी में कुछ सैनिटी की कमांड्स भी चलानी पड़ती है कुछ प्रॉपर्ली रोज वगैरह को अपडेट करने के लिए, जिससे कि वेलेक में डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं है। और हमने ये भी थोड़ा सा छोटा सा फिक्स किया था कि वेलेक में अगर डेटा समहाउ इनकंसिस्टेंट आता है कि अगर ग्रेटर देन 100% आ रहा है या अवेलेबल टाइम इज लेस देन यूसेज टाइम, तो उस केस में हम वेलेक में डायरेक्टली रिपोर्ट कर देते हैं कि सम इनकंसिस्टेंसी इज सीन इन वेलेक आउटपुट, यू नीड टू प्रोवाइड द लॉग्स टू मेंटर सपोर्ट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दिस, इस तरह से कुछ एरर मैसेज दे देते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे हमने एक्सपीरियंस किए थे सिस्टम को थोड़ा सा और रोबस्ट बनाने के लिए। अभी गोइंग फॉरवर्ड एक और चेंज हम प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ा इशू आया है कि माई सीक्वल विथ V23 जनरली जो हम बोल रहे हैं कि जो कस्टमर है वो RHL 8 मशीन्स को मूव कर जाएगा और RHL 8 का ही हम वेलोचिन में सपोर्ट देंगे, मे बी RHL 7 का सपोर्ट शायद नहीं देंगे। तो माई सीक्वल ये बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन में कि वो जो अभी एग्जिस्टिंग जो हम यूज करते हैं वो 5.6.13 सॉफ्टवेयर वर्जन माई सीक्वल का वर्जन यूज करते हैं, और ये माई सीक्वल कह रहा है कि ये कंपैटिबल नहीं है विथ माई सीक्वल 8, मतलब RHL 8 मशीन के साथ 5.6.13। इसके लिए करना पड़ेगा RHL 8 के साथ MySQL 8 जो रिसेंटली रिलीज्ड है वो ही कंपैटिबल है और उसी पे कस्टमर को यूज करना पड़ेगा। मतलब कोई भी जो क्लाइंट है जो सर्वर रनिंग है वो 8.0 का ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ माइग्रेशन स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमें अपने पे सर्वर को भी अपग्रेड करना है 5.6 से 8.0 पे लेकर आना है। तो उसके लिए कुछ कुछ छोटा छोटा चेंजेस भी रिक्वायर्ड है। तो इस स्कीमा में कुछ प्रॉम्प्ट में चेंजेस है, हमें डायरेक्टली 5.6 से 8.0 में डायरेक्टली कोई ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इन बिटवीन पहले 5.6 से 5.7 पे जाना पड़ता है, कुछ हमें प्रॉक्स को अपडेट करके फिर 5.7 से 8.0 पे जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमें एक माइग्रेशन स्ट्रैटेजी बनाना, जिसके लिए एक सत्या ने कल एक प्रपोजल भी रेज किया था, ये 23 के लिए प्लान है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। आशीष सर कुछ बचा है क्या कवर करने को ESDB में? शिवम सर, ये माइग्रेशन के चलते अभी जो एग्जिस्टिंग टेबल्स डेटाबेसेस वगैरह है वो भी मतलब ऐसे डैश होल्ड बन जाएंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, मतलब वो रहेंगे ना बस या फिर हट जाएंगे? क्या चीज रहेगा, डेटाबेस रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, अभी जो एग्जिस्टिंग टेबल्स वगैरह है अब वो डेटा नया रहेगा, वो नए वाले MySQL 8 अगर V23 के वेलेक से भी आप पुराना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम प्लान कर, तो डेटा लॉस नहीं होगा, एग्जिस्टिंग डेटा बेस के ऊपर ही हम MySQL 8 सर्वर को लॉन्च करेंगे।
सर स्कीमा तो सेम रहेगा ना, बाकी स्कीमा सेम जो रहेगा tables- निशांश, उसमें कुछ जो प्रॉक्स हैं, प्रॉक्स में कुछ थोड़े बहुत जो स्टेट सीक्वल के स्टेटमेंट्स हैं उसमें MySQL 8 और 5.6 में थोड़े बहुत चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ग्रुप बाई नहीं है उसमें, जैसे कुछ ऑर्डर बाई करना है, कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं वो हमें करने पड़ेंगे, तो वो माइग्रेशन के अंदर ही होंगे। और सर ये जो आपने बताया था कि वी कैन हैव एट मोस्ट 500 कनेक्शन पैरेलल एट अ टाइम, तो सर ये डिफाइन मतलब MySQL की तरफ से होता है ये 500 या नहीं, फिर हम हमने, बताते हैं। तो सर ये क्या ये पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि 500 हमें रखना है? है। तो ये हमने जब कॉन्फ़िगर जब सर्वर अप करते हैं तो हम ये फाइल देते हैं ना, MySQL.configuration फाइल, उसमें ये हम देते हैं मैक्स कनेक्शंस। इसके बेसिस पर वी कैन स्पेसिफाई कि कितने मैक्स कनेक्शन, डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है कुछ। नहीं सर, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसके, या फिर हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये नंबर सही लग रहा है, ऐसा कुछ? मतलब एट मोस्ट देखो, ओपन एफडीज तो एक होस्ट पर 1024 हो सकती है, तो कुछ हम तो तो हमें उस मैक्स, पर रखना पड़ेगा ना कि नहीं सारे नहीं रख सकते ना आप एक होस्ट पे, मशीन पे आप सारे MySQL को दे दोगे तो कुछ और चलेगा ही नहीं। तो अच्छा थोड़ा सा इसलिए हम उसी हिसाब से रखते हैं कि MySQL होस्ट पे इतना मैक्स कनेक्शन ही हम अलाउ करें। तो ये मैक्सिमम मिनिमम से थ्रेशोल्ड थोड़ा तो, हाँ हाँ सर बताइए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? था कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तो वो है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ पैरेलल क्वेरीज चल सकता है MySQL सर्वर पे? हाँ, इतने वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐसा कुछ, कनेक्ट कर सकते हो। हाँ मतलब पैरेलल क्वेरी तो वही होगा ना, एक क्लाइंट एक क्वेरी, तो कितने क्लाइंट्स कनेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम? एक क्लाइंट एक बार में एक ही क्वेरी करेगा, राइट? क्लाइंट स्लीप भी हाँ। कर सकता है, क्लाइंट में स्लीप हाँ भी कर सकते हैं। सकते हैं, जैसे हम लोग बीच में देखे थे कि कुछ हाँ प्रॉब्लम क्लाइंट अगर कुछ नहीं कर रहा हो तो स्लीप स्टेट में ही है। तो वो कनेक्शन इन जनरल जो है, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं था कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्टेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्टेड है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल क्वेरीज है ये? क्लाइंट कनेक्शन है, क्लाइंट किसी भी स्टेट में हो सकता है, क्लाइंट स्लीप भी कर सकता है, क्लाइंट क्वेरी भी रन कर सकता है, क्लाइंट कोई भी स्टेट में हो सकता है। दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट कनेक्शन, मतलब आप 500 वेलिसी कनेक्ट कर सकते हो, एक तरह से आप ऐसे समझ लो। You can have at most 500 VLC connections to ESDB server in one go. शिवम, इसको 1000 करने में हमें पता है कि कोई इशू है क्या? ओपन एफडीज कितने होते हैं हमारे पास एक मशीन में? 1024 ही होते हैं ना। हाँ। तो क्या हम सारे, क्या मतलब फिर कुछ भी चलेगा ये सिस्टम में अगर सारे एफडीज हम उसको दे देंगे तो? नहीं, अगर मैक्स 024 कनेक्शन तो पर प्रोसेस होता है, that is not machine FD, that is per मशीन, processor. तो MySQL में अच्छा एक इसमें कैलकुलेशन होती है MySQL साइड में। अच्छा एक like इसमें कुछ कनेक्शन का लिमिट है, मैंने बहुत पहले देखा था, कि इसमें कुछ कैलकुलेशन होती है, ये किस हिसाब से? ये मैं चेक कर लूंगा एक बार, मैंने बहुत पहले मेल भेजी थी इस पे कुछ एनालिसिस करके कनेक्शन की लिमिट की, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा उसमें क्या लॉजिक था, कुछ तो था जिसपे हमने क्वांटिफाई किया था कि इतने कनेक्शन से ऊपर जा ही नहीं रहा था, 404 कनेक्शन से ऊपर शायद। इसको मैं सर बताऊंगा आपको देख करके, अभी मुझे याद नहीं है। सर वो एक बार मेल मिले तो फिर से हमें रिसेंड करिएगा ना। हाँ हाँ। शिवम एक बात बताओ, ये जो RTS से जो वेलेक चलाते हो सिस्टम स्टैट्स वगैरह अपडेट करने के लिए, लेट्स से ये क्वेरी फेल हो गई तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट है? RTS कोई एरर लॉग करके निकल आता है? वेलेक एरर लॉग कर लेता है, आरटीएस मतलब आरटीएस वेट कर लेता है वेलेक कंप्लीट होने का, वेलेक जैसे ही कंप्लीट होता है आरटीएस आगे बढ़ जाता है, बस लॉगिंग होती है और कुछ नहीं होता। और इस वेलेक की क्या रीड टाइम आउट है, राइट टाइम आउट? वेलेक के लिए, हाँ वेलेक के लिए देख लेते हैं।
डिफॉल्ट जो है ये 20 मिनट्स तो RSR के लिए है और के लिए फाइव मिनट्स 5 मिनट्स है। अच्छा 5 मिनट्स तक रेस्पॉन्स वेट कर सकते हो। 5 मिनट्स सर ये हम लोग अपडेट भी करते हैं ना अंदर जाके, डिपेंडिंग में क्वेरी टाइप क्या है। हाँ वही है। RSR का 20 मिनट्स है, बाकी तो ठीक है ना। RSR का 20 मिनट्स है, बाकी सबका तो यही है ना, 20 है, बाकी सबका डिफॉल्ट है। And was there a reason to make different for RESR? I think वो हमने initially जब slowness थी तब बनाया था। हाँ तो हमने बढ़ा दिया था कि थ्रेड से हमने कर दिया है तो वो चल भी जाएगा मतलब, लेकिन अब तो इंडेक्सिंग भी कर दी तो मेरे साथ हाँ मतलब वो मेन ऑफ रीड टाइम आउट था, वो राइट टाइम आउट नहीं था एक्चुअली, रीड में प्रॉब्लम हो रही थी हमें, राइट में तो सच वैसे मतलब राइट में ही पहले रीड स्कैन भी करता है ना रोज, तो मतलब वो राइट करने जब जा रहा है तो जैसे अपडेट करना है उसको क्वेरी, तो अपडेट में भी राइट टाइम आउट चलता है। अपडेट में पहले वो कुछ रीड करेगा रोज को, अगर रीड करने में ही टाइम लग रहा है उसको किस रो पे अपडेट करना है पहले ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट करने में, तो ही अपडेट ओवरऑल स्लो हो जाएगा। तो RSR तो जनरली राइट ही करता है, इंटरनल तो रीड भी होता है। इंडेक्सिंग से हमारा रीड फास्ट हो जाएगा तो राइट भी फास्ट हो जाएगा। और एक चीज ये भी थी कि जो वेलेक में अभी हम क्या करते हैं, वेलेक में कल जो बताया था कि हम इंफॉर्मेशन जो क्वेरी होती है, क्वेरी को हमने रिड्यूस कर लिया है और जो डेटा है वो वन गो में हम सॉफ्टवेयर में ले आते हैं। सॉफ्टवेयर में उसकी जो प्रोसेसिंग करके जो यूजर नेम मैचिंग है या डिजाइन पाथ मैचिंग वगैरह है वो सॉफ्टवेयर में आगे करते हैं। वो इसलिए हमने किया था शुरू में कि जो हमारी क्वेरीज थी वो इंडेक्सिंग बिल्ड नहीं थी, तो हमारी क्वेरीज स्लो चलती थी एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग। अब हमारा क्या है कि क्वेरीज हमने इंडेक्सिंग वगैरह बिल्ड करें, क्वेरीज हमारी फास्ट हो गई है काफी। तो मे बी वी कैन अगेन थिंक ऑफ कि हम जो क्वेरीज को हमने कंस्ट्रेंट करके सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग ज्यादा कर रहे हैं, उसकी जगह हम जो मैचिंग करनी है यूजर नेम की या डिजाइन पाथ की और सारी चीजें वो हम MySQL के अंदर ही करना शुरू कर दें विद अ डिफरेंट क्वेरी में। और उस वही रोज हम लेकर आए जो कि हमें एंड में मतलब इससे डेटा निकाल रहा है। वो एक इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं हमारे इसके लिए, वेलेक में रीड के लिए। MySQL में तो ये चीज है। तो आई थिंक दैट दिस कंप्लीट्स ESDB। अगर कुछ पेंडिंग है या कुछ मिसिंग है तो लेट मी नो। शिवम जो आपने करप्शन का पॉइंट किया ना कि let's say for debugging some issue you are trying to find out a corrupted entry in the DB, how do you approach that? तो करप्टेड एंट्री अगर है तो उसकी वजह से कुछ इनकंसिस्टेंसी आएगी हमारे रीड में, राइट। अगर इनकंसिस्टेंसी आएगी तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस टाइम विंडो में, मिनिमम टाइम विंडो में हमें इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। तो लेट्स से यूजर ने बोला कि उसको 1 महीने की क्वेरी चलाए और 1 महीने में उसको इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो हम उसको मतलब मेरी अप्रोच क्या रहती है कि मैं सबसे पहले उसको क्वेरी को छोटे से छोटा करने की कोशिश करता हूँ कि वो टाइम विंडो निकालने की कोशिश करता हूँ मे बी ऑफ 1 सेकेंड जिसमें इनकंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है। लेट्स से एक एम्बेटर है MET PSC 00 और जिसमें 1 महीने के विंडो में
इनकंसिस्टेंसी आई, तो मैंने पहले उसको 15 डेज की क्वेरी चलाई और उसमें देखा कि फर्स्ट 15 डेज में इनकंसिस्टेंसी आ रही है क्या। एक तरह से बाइनरी सर्च चलाया, तो फर्स्ट 15 मिनट्स में चलाया, फर्स्ट 15 डेज में, अगर उसमें नहीं आ रही तो सेकंड 15 डेज के 7 डेज में चलाया, फिर सेकंड हाफ के सेकंड 7 डेज के उसमें 3 डेज में चलाया। इस तरह से कर करके बाइनरी सर्च कर करके वो टाइम विंडो निकाला, मिनिमम टाइम विंडो जिसमें कि इनकंसिस्टेंसी मिल रही है। फिर डीबी में जाकर के उस टाइम विंडो की करस्पॉन्डिंग देखा कि हम हमारी यूसेज की इंफॉर्मेशन कहाँ रखी होती है, डेली रेफरेंस टेबल में। हमने वहां पर जाके देखा उस टाइम विंडो की करस्पॉन्डिंग जो हमारी डेली रेफरेंस टेबल में फॉर दैट एमुलेटर कौन कौन सी रोज पड़ी हुई है, फिर वो जो रोज पड़ी हुई है उनके करस्पॉन्डिंग क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो उस पर टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अब उस टाइम स्टैम्प मतलब अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो डेटा गलत टाइम पे अपडेट हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट कौन करता है, आरईएसआर करता है और ईएस करता है। आरईएसआर के लॉग्स में उस टाइम स्टैम्प पर जाकर देखा कि आरईएसआर कर क्या रहा था उस टाइम पर, आरईएसआर एक्टिव था, आरईएसआर की कोई क्वेरी फेल हो गई है, या आरईएसआर उस टाइम पर एग्जिट हो गया था और उसका क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आरईएसआर नहीं कर पाया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ईएस ने क्या किया, ईएस ने क्यों नहीं अपडेट नहीं किया, तो ये देखा। और उसमें ये भी होता है कि नेक्स्ट टाइम हम सेम बोर्ड यूज करते हैं तो पहले हम पुराने बोर्ड का इन टाइम अपडेट करके आते हैं, तो जो हमारा जो बैकअप लॉजिक है वो क्यों नहीं चला। इस तरह से मतलब देखते आते हैं कि कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली प्रॉब्लम फिर इस तरह से ट्रैक करते करते बैक ट्रैक करते प्रॉब्लम मिल जाती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, आरईएसआर ने अपडेट नहीं किया या ईएस ने अपडेट नहीं किया, या पोटेंशियली क्या प्रॉब्लम आई थी, कभी मशीन हैंग हो गई या मशीन में स्लोनेस है, या टाइम स्टैम्प गलत आ रहा है, या हमारी क्वेरी जो है वो फेल हो गई, तो हमारी क्वेरी में क्यों फेलियर आया, वो क्वेरी क्या थी। उसको कभी कभी रेप्लिकेट करने का ट्राई करना पड़ता है, कभी कभी लॉग्स में डायरेक्टली, मतलब अब तो समझ में आएगा डायरेक्टली लॉग्स में कि क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम रही है। इस तरह से ट्रैक करते हैं, थोड़ा बैक ट्रैक करके, और फिर डीबी में जा करके फिर मतलब जब समझ में आया था चाहिए प्रॉब्लम उसको फिक्स करके फिर डीबी में भी मतलब एक अपडेट क्वेरी चला देते हैं कि सैंपल रिस्टोर हो जाए। Makes sense. And Shivam, maybe you already covered it, but a resource server का ESDB specific log is in the enterprise server area or it's in the resource server area? हाँ, तो बताया आपने कि जो लॉग है वो 2 एरिया में होता है। तो जो थ्रेड स्पेसिफिक लॉग होते हैं वो तो इसमें होते हैं, जो हमारे रिसोर्स सर्वर डॉट लॉग बनती है उसमें होते हैं थ्रेड स्पेसिफिक लॉग। वहाँ पे थ्रेड क्रिएट हो गया है और थ्रेड से कुछ क्वेरी में एरर आएगी तो यहाँ लॉग हो जाएगा। और जो ईएस रिजर्वेशन का और मैनुअल रिजर्वेशन के लिए जो फंक्शन हम क्वेरी बनाते हैं उसके जो लॉग्स होते हैं वो रिसोर्स सर्वर अपने रिसोर्स डॉट एमुलेटर डॉट लॉग में डालता है। यहाँ पर डालता है। तो ये जो है यहाँ पर ये क्वेरी के भी कुछ लॉग्स हैं और ये भी लॉग्स है। अपडेट रिसोर्स यूसेज इन्फो है, ऑन डिस्कनेक्ट पे क्या क्या क्वेरी बना रहा है, डिस्कनेक्ट पे क्या स्टेटमेंट सीक्वेंस है, ये क्वेरी भी हम लॉक करते हैं। ये क्वेरी डायरेक्टली रन करके देख सकते हैं इस क्वेरी से कुछ एरर तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या क्वेरी फेल होगा तो यहाँ पर एरर मैसेज हमें कैप्चर हो जाएगा, एरर मैसेज क्या आया है। दो है लॉग फाइल्स रिसोर्स सर्वर रखी है, est.log में होता है। ES की तो ES trace.log में करते हैं हम सारा, right? हाँ, और जो स्क्रिप्ट की फाइल होती है वो esd के डैशबोर्ड सेटअप में होती है। So जो हम ES trace में लॉग कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ES को पास ऑन कर देते हैं लॉग्स फॉर राइट इट द मेन थ्रेड को, या फिर क्या कर रहे नहीं, हैं, वो सेकेंडरी थ्रेड से तो राइट करा नहीं रहे। वो क्यू में डालते हैं ना, लॉग क्यू होती है जो वही होता है जो कॉन्सेप्ट की सेकेंडरी थ्रेड जो होता है वो लॉग क्यू में डाल देता है और जो प्राइमरी थ्रेड होता है उसको फिर लॉग को फ्लश करता रहता है। जैसे Flush कर रहा ईएसडीबी, हूँ। हाँ ये ईएसडीबी थ्रेड लॉग्स है के लिए सेकेंडरी थ्रेड जो है वो डालता जाएगा क्यू में। एंड रिसोर्स सर्वर में भी हम सेम ही यूज कर रहे हैं, राइट? हाँ, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, रिसोर्स सर्वर भी सेम लॉग क्यू बना देते हैं। एंड हु इज क्लीनिंग अप द क्यू? तब जब ये कंज्यूम कर लेगा, रीड कर लेगा तो मेन थ्रेड ही उसको क्लियर करता जाएगा। मतलब मतलब फ्रंट एक से एक रीड करे, एलिमेंट। पॉप किया, ओके। फ्रंट से रीड करके पॉप करता है।
तो फ्रेंड से रीड किया, यहाँ पॉप कर दिया। एक वेलेक में we talked about कि there should be some emulator level segregation of queries. कि जब हम मल्टी एमुलेटर के लिए क्वेरी करते हैं तो we thought about creating maybe separate thread or parallel thread or making query one by one. How we are doing it as of now? तो वेलेक में कल जैसा बताया था कि जो हम थ्रेड स्टार्टिंग में लॉन्च कर देते हैं तो और जो क्वेरीज बनती हैं वो थ्रेड एमुलेटर वाइज क्वेरीज बचती है। तो पहले तो हमने लिस्ट ऑफ पावर्ड ऑन एमुलेटर्स निकाल लिए और जो लिस्ट ऑफ इनपुट एमुलेटर्स है उसमें से मैच किया कि जो एमुलेटर लिस्ट ऑफ इनपुट में है वो पावर्ड ऑन इस ड्यूरेशन में थे कि नहीं थे। जो पावर्ड ऑन होंगे उन्हीं के हम अवेलेबल टाइम और पावर ऑन यूसेज टाइम की क्वेरी करेंगे। तो जो सबसेट मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्वेरी लिस्ट निकाली मेन थ्रेड से पर एमुलेटर। यहाँ पर ये हमने गेट क्वेरी लिस्ट फॉर कैशे करना है, यहाँ पर ये एमुलेटर की लिस्ट है हमारे पास, इससे हमने क्वेरी बना ली तो क्वेरी लिस्ट बन गई और क्वेरी लिस्ट हमने क्यू में डाल दिया। एक क्वेरी लिस्ट है और यहाँ पर ये डालते आ रहा है पेंडिंग ESDB थ्रेड इन्फो लिस्ट। अब इस क्यू से जो जो थ्रेड्स हमारे लॉन्च है, मल्टीपल थ्रेड्स लॉन्च है, वो एक एक करके लॉक लेने करके क्यू से रीड करते जाएंगे क्वेरी। So thread हम per emulator launch कर देते हैं। नहीं, थ्रेड में पर एमुलेटर वाइज कुछ नहीं है, मतलब इस क्यू से एक एक करके रीड करता जाएगा थ्रेड। और इस क्वेरी के अंदर ही जो स्ट्रक्ट है, इस स्ट्रक्ट में ही एमुलेटर नेम भी है, जैसे ये देखिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। सो आपने ये लिस्ट तो बना ली क्वेरीज की, ठीक है। Who is the one means how many threads are there first? तो डिफॉल्ट 8 है और कॉन्फ़िगरेबल है लेकिन। सो हम डिफॉल्ट 8 थ्रेड्स हमेशा क्रिएट कर देते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेबल है? लाइक कॉन्फ़िगरेबल तो है, अभी क्या बना रखा है आपने? Default ENP को 8 छोड़ है। देते हैं। तो ठीक हम है। हमेशा 8 थ्रेड लॉन्च कर देते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एमुलेटर्स क्वेरीज जो हमें आ रही है। हाँ, अभी ये कह सकते हैं। अभी Okay. हम वो उससे कम नहीं करते, मतलब वो कर सकते हैं पोटेंशियली, यस। सो सिंगल एमुलेटर क्वेरी में भी हम 8 थ्रेड्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। तो सिंगल एमुलेटर क्वेरी में भी मल्टीपल क्वेरीज होती है, मतलब उसकी यूसेज की इंफॉर्मेशन की क्वेरी होगी, उसकी पावर ऑन की इंफॉर्मेशन की क्वेरी होगी, दैट्स राइट। उसकी पावर ऑन टेबल, मतलब एक से ज्यादा क्वेरीज होंगी और So भी who क्वेरीज। is assigning this queries to thread? मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड ने पहले ये फंक्शन कॉल किया अपेंड क्वेरी टू लिस्ट। तो ये मेन थ्रेड ने पहले इस क्वेरी की लिस्ट के लिस्ट अंदर, क्रिएट कर ली। हाँ, तो उससे सारे जो एमुलेटर्स हैं उन सारे एमुलेटर्स के लिए कॉमन क्यू में क्वेरीज की लिस्ट क्रिएट कर ली इस फंक्शन के थ्रू अपेंड क्वेरी टू लिस्ट। That's इसके right. थ्रू हमारे पास इस वाला जो पेंडिंग ESDB थ्रेड इन्फो लिस्ट है, इसके अंदर सारी पहले से थ्रेड को देने से पहले कंप्लीट क्वेरी जो हमें एग्जीक्यूट करानी है उसकी लिस्ट बन गई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सेकेंडरी जो थ्रेड्स हैं वो अब इस क्यू से रीड करते जाएंगे वन बाय वन और एग्जीक्यूट करते जाएंगे इन पैरेलल। इसके So बाद अगर आप देखें how are they deciding? But what I'm trying to understand is it may happen कि first जो element pick किया है वो 8 थ्रेड ने एक साथ लॉन्च कर लिया हो। ओके, आप म्यूटेक्स लॉक दे रहे हो इनको। हाँ हाँ, लॉक तो हो गई, कॉमन शेयर है। आप लॉक का साइन कर रहे हो। Shivam, every thread will have its own connection with the SQL DB. हाँ, एवरी थ्रेड विल हैव इट्स ओन करेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर जो थ्रेड को ना हमने देखा है ना, तो थ्रेड को हम भेज रहे हैं करेक्शन पॉइंटर भेज रहे हैं उसके थ्रेड फंक्शन में। तो वो हर थ्रेड के लिए नया कनेक्शन पॉइंटर बनता है। सेम कनेक्शन पे आप मल्टीपल क्वेरीज नहीं चला सकते। तो अगर एक ही कनेक्शन पॉइंटर सबको दे दिया और सारे थ्रेड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो फेल हो जाएगी क्वेरी, चल ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें अलग अलग कनेक्शन पॉइंटर तो देना ही है हर थ्रेड को। तो अगर उसका लॉजिक देखें, इसकी भी थ्रेड जो है यहाँ पर है और इसमें ये फंक्शन है। इस फंक्शन में देखेंगे तो हमने क्रिएट किया हुआ है ये जो है ना, इस क्लास के अंदर कनेक्शन का पॉइंटर बनता है। तो हर थ्रेड का अपना अलग कनेक्शन का पॉइंटर है।
और ये मतलब लोकल ऑब्जेक्ट है तो ये इंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, लगता है कि होगा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। शिवम, जो आपकी क्वेरी की लिस्ट है ये वो क्वेरी की लिस्ट में जो आप क्वेरीज ऐड कर रहे हो वो पर एमुलेटर वाइज ऐड करते हो या बल्क नहीं की नहीं तरह करते हो? नहीं, तो पर एमुलेटर मतलब ऐसा होगा, एक एमुलेटर है, जैसे मेरे पास मैंने 2 एमुलेटर क्वेरी की, मेट पीएससी 0001, ठीक है। मेट पीएससी 00 के लिए मेरे पास लेट्स से कि 2 क्वेरीज बनी, एक पावर ऑन टाइम की और एक यूसेज टाइम की। तो जो यहाँ पर क्या हुआ इस फंक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, जो अपेंड क्वेरी टू लिस्ट कॉल होता है, तो ये पहले क्या करेगा, मेट पीएससी 00 के करस्पॉन्डिंग, या इटरेट कर रहा है इस पे, मेट पीएससी 00 के करस्पॉन्डिंग जितनी भी क्वेरीज बनती हैं वो सारी क्वेरीज इसमें डाल देगा। इसके अंदर पहले 0th इंडेक्स पे मे बी यूसेज पावर ऑन की क्वेरी होगी 00 की, और फर्स्ट इंडेक्स पे यूसेज की एंट्री होगी 00 की। फिर जो सेकेंड इंडेक्स पे 01 की पावर ऑन की और 01 की यूसेज की, थर्ड इंडेक्स पे 01 की यूसेज की होगी। अब जो 8 थ्रेड्स हैं उसमें से 4 थ्रेड जो हैं वो चारों मतलब एक एक क्वेरी पिक कर लेंगे चारों, और वो जो डेटा है इस वाली क्वेरी के साथ में जो स्ट्रक्ट पास होता है, स्ट्रक्ट में एमुलेटर नेम भी होता है। तो जब ये रिजल्ट देंगे, जो रिजल्ट में एमुलेटर नेम टू क्वेरी का आउटपुट होगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी थ्रेड है वो जब अपनी कैशे बिल्ड करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर में जो डेटा रखता है वो हैश मैप में रखता है इस तरह से, ये पॉपुलेट कर रहे हैं ना हम सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन जो हमने, ये है हमारा प्रोसेस्ड ESDB थ्रेड इन्फो। पर अब जब ये पेंडिंग थी, अब ये है प्रोसेस्ड, दैट मींस कि ये जो था ये थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और ये रिजल्ट है जो थ्रेड ने दिया है मेन थ्रेड को। इसके साथ भी आप देखेंगे एमुलेटर नेम है। तो जब मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड ने सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो मैप जनरेट कर रहा है, मैप एमुलेटर नेम की है, मैप एमुलेटर नेम के बेसिस पर वो रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। तो एमुलेटर नेम के बेसिस पर उसके पास रिजल्ट में स्टोरेज इंफॉर्मेशन भी होगी और यूसेज इंफॉर्मेशन, अरे अवेलेबल टाइम इंफॉर्मेशन भी होगी और यूसेज टाइम इंफॉर्मेशन भी होगी, दोनों सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, और ये पर एमुलेटर क्वेरी मतलब मैप होगा। तो मैप मतलब मैप में की जो है एमुलेटर है, तो देयर कैन बी मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, और जितने एमुलेटर्स की क्वेरी की है उतने की वैल्यू पेयर्स होंगे। तो शिवम, आपने अभी जो एग्जांपल बताया उसमें फिर जीरो, जब तक ये कंफर्म नहीं करता कि ये पावर डाउन था मेट पीएससी 01, तब तक क्वेरी नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट? तो वो तो पहले ही हो गया ना, पावर ऑन नहीं था तो हमने तो क्वेरी, हमें तो उसका पावर ऑफ से हटा ही दिया ना, फिल्टर पहले ही कर लिया ना। तो आप कह रहे हो कि 0 और 1 आपने क्वेरी पहले की थी, फिर उसके रिजल्ट पे हम डिपेंड तो करके आपने हाँ 2 और 3 ये बनाया। हाँ ESDB में हम क्वेरी करने ही नहीं जाएंगे, अगर हमें पता है उस इंटरवल में वो पावर ऑफ है तो क्यों करेंगे फिर क्वेरी, यूसेज की क्वेरी। नहीं, मैं वो तो ठीक है, तो पर उस मैं केस सोच में रहा था क्या कि आपने करेंगे? थ्रेड को पास ऑन किया है नहीं, मतलब कुछ आपने बना के फॉर होल्ड रखा है नहीं, उसके बाद आप उसे शायद अनब्लॉक कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। थ्रेड तो मतलब ऐसे अगर मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मतलब एक थ्रेड जो है वो दूसरे थ्रेड पे डिपेंडेंट नहीं है उसके आउटपुट पर, ये अलग अलग पैरेलल में असिंक्रोनसली चल रहे हैं सारे थ्रेड्स। मेन थ्रेड ने पहले पूरी क्वेरी लिस्ट जनरेट कर दी, उसके बाद सेकेंडरी थ्रेड को बोला कि अब तुम लोग इसमें से एक एक क्वेरी उठा के पिक करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, और जो रिजल्ट है मेन थ्रेड रिजल्ट है वो आता जाएगा, और रिजल्ट के साथ में एमुलेटर नहीं होगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर में अपने पास डेटा पॉपुलेट कर रहा है जो थ्रेड ने प्रोसेस करके दिया है, वो एक मैप में डाल रहा है, मैप में एमुलेटर नेम की है, ये एमुलेटर नेम भी सेकेंडरी थ्रेड से मिला है उसको, और उसके साथ में इंफॉर्मेशन मिली है रिजल्ट और क्वेरी टाइप, ये इंफॉर्मेशन उसने मैप में पॉपुलेट किया उसके अकॉर्डिंग मेन थ्रेड ने। So भास्कर, these are independent queries. जो हाँ एक डिपेंडेंट क्वेरी थी वो इन्होंने पहले ही एग्जीक्यूट कर ली फ्रॉम द मेन थ्रेड, बिकॉज एक तरह से इन्होंने जो शुरू में डेटा निकाला टू फाइंड आउट कि भाई कौन से एमुलेटर्स का आउट ऑफ द इनपुट लिस्ट कौन से एमुलेटर्स का एक्चुअली डेटा है एसक्यूएल में, वो डेटा इन्होंने शुरू में ही एक क्वेरी से निकाल लिया शिवम ने। हाँ ये फिल्टर पावर्ड ऑफ एमुलेटर्स, इसके अंदर सो भी क्वेरी होती है। एक प्राइमरी थ्रेड के पास भी एक एसक्यूएल कनेक्शन है, और एक तरह से उसने प्राइमरी थ्रेड से ये डेटा निकाल लिया अक्रॉस ऑल एमुलेटर्स जो इनपुट आए। अच्छा,
एंड उसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट क्वेरीज है थ्रेड के पास। ये जो क्वेरी है ये मेन थ्रेड ही कर रहा है अभी तक। तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन तक तो सेकेंडरी थ्रेड्स लॉन्च ही नहीं हुए हैं। इसका मतलब प्राइमरी थ्रेड को कुछ देर के लिए तो ब्लॉक कर ही रहा है। बट ये वेलेक है ना, वेलेक में क्या है, वेलेक सबसे क्या है? तो यहाँ प्रॉब्लम भास्कर ब्लॉक की नहीं थी, या मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस की थी, परफॉर्मेंस के क्योंकि ये मेन वेलेक है जो यूजर लेवल क्वेरीज है। सो अगर नंबर ऑफ एमुलेटर्स हैवी होते हैं और डेटा बहुत ज्यादा है तो फिर दिस टेक्स टाइम। So that's where more of a performance query is something that has been done here. This covers the ESTP part. Session starts. सेशन स्टार्ट्स देखने में बात नहीं है कि हम यूसेज की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हर कमांड ने कितना टाइम लिया, वर्कफ्लो टाइम। MySQL में आज सच कोई एरे का सपोर्ट नहीं है, एरे फील्ड नहीं है, हम कॉलम को एज एन एरे बता सकते हैं। तो इंटरनली हम सॉफ्टवेयर में ही उसको मतलब एज एन एरे रखना है, टाइम की डिफरेंट टाइम की फील्ड्स, तो हम इंटरनली इसको डॉलर जो डिलीटर होता है उस पर हम पूरी स्ट्रिंग को इस तरह से इंपोर्ट करके रख सकते हैं। इसमें ये जो है ये सेशन टाइम हो गया, ये कंप्यूटर टाइम हो गया, ये रेज सेट का, रेज गेट का, चेक पॉइंट से चेक पॉइंट रिस्टोर लगी अपने बताएंगे। इस तरह से कंप्लीट टाइम की इंफॉर्मेशन इस तरह से रखते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी पूरी स्ट्रिंग लेकर आते हैं तो उसको डॉलर फील्ड टोकनाइज करके हम इंडिविजुअल फील्ड्स निकाल करके हम सॉफ्टवेयर में शो करते हैं। इन गोस फॉर सिमुलेशन स्टार्ट्स है, टीएक्स स्टार्ट्स है। अब तो हमने ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो हमने प्लग करके होंगे जनरल यूसेज टेबल के साथ ही रखना शुरू कर दिया। अगर आप देखो ये इंफॉर्मेशन तो हमने जनरल यूसेज टेबल के साथ ही पसंद अगर मैं टेबल में आरटीएस बीसी टेबल को अपडेट करेगा और रिसोर्स बीसी टेबल को अपडेट करेगा। I think that's it for today's session. Any questions or anything missing? Sir, can you please share a little bit more about ES signal handler? There we have a secondary thread which we are cancelling in default case. This is switch case in ES का नॉर्मल ES का ही सिग्नल हैंडलर था। जनरल के लिए क्या बता रहा है उसमें? इसका डिफॉल्ट केस में नीचे स्विच किया, उसका डिफॉल्ट केस हम सेकेंडरी थ्रेड हैंडलर में हम उसको क्लीन अप कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी जो थ्रेड है वो कौन सा थ्रेड क्या है यहाँ पे जिसको हम कैंसिल मार रहे हैं? ये वही थ्रेड है क्या जो हम लोग ये इसी से करते हैं ना? ये ES हमारा जो थ्रेड होता है वो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ ES के लिए लॉन्च करते हैं। आशीष जो ES में और कोई थ्रेड तो होता नहीं, सिर्फ ESDB का ही थ्रेड है। नहीं, मॉनिटर थ्रेड होता है ना। क्या थ्रेड वैलियम के लिए जो कौन सा थ्रेड? एंटरप्राइज मॉनिटर करेगा मतलब मेरा क्वेश्चन मॉनिटर का नहीं, वेलियस के अंदर। हाँ, वेलियस के अंदर वेलियम से कनेक्ट करने के लिए एक सेकेंडरी। अच्छा, आई थिंक दैट इज व्हाट द हैंडलिंग इज देयर इन दिस। आई थिंक सिग्नल की कोई हैंडलिंग ही नहीं है फॉर ESDB मोस्ट लाइकली। ESDB थ्रेड का शायद नहीं होगा, ये तो फिर उसी का है पहले सही है। इसके लिए तो यार शोक को पकड़ लेना, याद बताएगा। सर मतलब मैं देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज का ये कैंसिल कर रहा है।
ये वही है फिर पीएस मॉनिटर वाला ही जो थ्रेड बता रहे हैं वही है। एक सेकेंडरी ईएस भी होता है इसमें कहीं? क्या अजय? सेकेंडरी ईएस वाला ही कॉन्सेप्ट होता है ना कि तो बस होती है सेकेंडरी ईएस बस और प्राइमरी ईएस उसकी होती है। सेकेंडरी वेलियम होता है प्राइमरी मॉनिटर और नहीं होता था जो हम रिमोट ईएस से कनेक्ट करते हैं। नहीं, सो अजय वो केवल मॉनिटर प्रोसेस होता है, and monitor process is the one who takes a decision that the enterprise server needs to be launched here or not. So you can launch multiple monitor process, well EM process on different machines. Then that well EM process is kind of monitoring the enterprise server, and those well EM process then actually decide on that if ES goes down or a machine goes down, other well EM should take over and start launching, something like that. But there is no ES, no multiple enterprise server process running. They are more of an enterprise monitor process running, whose job is to just launch the enterprise server, nothing else. ES regression शुरू के लिए हमारा Thanks, Shivam. I think I need to drop because मेरी एक meeting already over start. वो ES regression है वो सत्या हैंडल करता है ये पर पे उसको। हाँ नहीं, but I think cover it a little so that कोई questions हो सत्या या निधि के तो वो आ जाएंगे। थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि कैसा फ्लो है उनका। Thank you, Shivam. I need to drop here. Okay. इसके रिग्रेशन का सूट है हमारा पब्लिक कर लिया ये पाथ है उसका, इसके अंदर होता है वैलिड हिस्ट्री। इसमें 3 टेस्ट केस होते हैं हमारे। तो रिलीसी हिस्ट्री स्टैटिक होता है। स्टैटिक टेस्ट केस ये होता है कि सिंपली चेक करने के लिए कि एक फिक्स टाइम विंडो में जो हमने गोल्डन फाइल बना के डाल दिया कुछ कि ये डेटा जो है इस टाइम का डेटा है और ये हमने मेक श्योर किया वो ये सही डेटा है। तो जब भी हम नए सॉफ्टवेयर से रन करें तो उस टाइम विंडो का डेटा वही डेटा आना चाहिए, कुछ भी उसमें गलत नहीं आना चाहिए। तो इस टाइप के टेस्ट केसेस जो है वो इसमें है कि उस टाइम विंडो के करस्पॉन्डिंग डेटा एग्जैक्टली गोल्डन फाइल से मैच करना चाहिए। स्टार्ट टाइम एंड टाइम किया, ये गोल्ड फाइल ने बना रखी है, इससे हम अगर ये एग्जैक्टली मैच करेगा तो ये पास होगा, नहीं तो ये फेल होगा। इस टाइप के डिफरेंट टेस्ट केसेस हैं बेस्ड ऑन एमुलेटर। ये सारी एमुलेटर्स की क्वेरी का है, ये डिजाइन पाथ की क्वेरी का है। के इसमें CSV फाइल मैचिंग भी करते हैं और XML फाइल की मैचिंग भी होती है। हम स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी मैच करते हैं कि जो डेटा हमने राइट किया जो भी हमारा करंटली आ रहा है डेटा उसमें हमारा अवेलेबल टाइम से स्टार्ट टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अवेलेबल टाइम से यूसेज टाइम कम होना चाहिए, अवेलेबल टाइम ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तभी हमारा जो यूसेज टाइम का परसेंटेज है वो लेस देन 100% लगेगा। इस टाइप के स्टैट्स भी हमारे इसमें मैच होते हैं। एक दूसरा टेस्ट केस है डायनेमिक टेस्ट केस। इसमें डायनेमिक मतलब करंट स्टैट्स की क्वेरी होती है। इसमें मेजरली हम सेशन रन भी करते हैं। नया सेशन रन किया हमने, करेक्ट कॉन्फ़िगर किया, ये रिजर्वेशन किया और उसको हमने ट्रैक किया कि जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने सेशन रन किया है वो DB में उसका एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही। इस टाइप की जो टेस्टिंग है इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि करंटली हमने अभी करंट एक दिन की क्वेरी चलाई, उसमें हमने ट्रैक किया कि जो पावर ऑन टाइम है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, अवेलेबल टाइम वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूसेज टाइम अगर मैंने यूसेज किया तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूसेज टाइम शुड बी लेस देन अवेलेबल टाइम, ये भी ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप की जो करंटली जो करंट सिस्टम की ट्रैकिंग है वो होती है हमारी। इसके साथ में हमारे रन स्टैट जो हमने डिजाइन रन की तो हमारे कुछ कंपाइल स्टैट्स और रन स्टैट्स भी कैप्चर होंगे जो आर्टिस्ट डंप करता है, उसकी टेस्टिंग है कि उसके जो स्टैट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर जो टाइम फील्ड्स हैं तो ये इसका फंक्शन बना हुआ है चेक एफपी परसेंटेज कि जो उसका रन हमने किया था मान लो एमुलेशन में तो रन का टाइम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चेक पॉइंट सेव का टाइम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जो हमने कमांड रन की है।
और टोटल समेशन ऑफ ऑल द कमांड शुड बी लेस देन सेशन टाइम। इस तरह का जो भी चेकिंग है वो सारा इस फंक्शन इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम इसके आउटपुट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये वेरीफाई कर लेती है। इस तरह की चीज़ें भी हैं। शटडाउन अपडाउन करने के बाद दोबारा रीलॉन्च करके भी हम ट्राई करते हैं कि उसके बाद शटडाउन रीलॉन्च करने के बाद नया सेशन चला उसका डेटा प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक की है एक ये फीचर प्रोफाइलिंग की मतलब ये कॉमस्टैट रनस्टैट सिमस्टैट की टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेट टेस्ट केस है कि उसमें मतलब इसमें किसी पर्टिकुलर विंडो टाइम विंडो में भी जो फिक्स टाइम विंडो है अगर पहले की उसमें जो डेटा कॉमस्टैट रनस्टैट सिमस्टैट में है वो अभी अगर हम रन करते हैं आज के सॉफ्टवेयर के साथ तब भी सेम गोल्ड फाइल के साथ मैच होना चाहिए जो स्टैटिक टाइप ऑफ टेस्ट केसेस है हमारे। और जो करंट सेशंस है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस तरह की टेस्टिंग भी है इसमें। तो इसमें ये सब है कि यहाँ पर कमांड रन की कमांड हमारी उसका एग्जिट स्टेटस हमारा नॉन जीरो अगर है तो एरर आनी चाहिए सब है। सो जो बेसिकली वेलेक्स साइट से हम टेस्टिंग कर लेते हैं सारे कमांड्स चला चला के यूजर कमांड्स है उसकी टेस्टिंग हो जाती है। इसके साथ में एक सी एपीआई का भी सपोर्ट दे रखा है जो उतना यूज होता नहीं है सच। और तो इसके साथ में हमने वेलिसी का जो जैसे ये हिस्ट्री यूसेज करना है या कुछ इंफॉर्मेशन फेच करनी है जैसे यूसेज हमने जितने भी वेलिसी की सपोर्टेड कमांड्स है जो कमांड लाइन से है उसके लिए हमने सी कमांड भी दे रखी है कि यूजर अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली चला सकता है। जैसे यूसेज स्टार्ट की है इसी तरह से वेलिसी की भी है। जैसे ये पावर स्टैट की कमांड हो गई हिस्ट्री की ये यूसेज स्टैट की कमांड हो गई हिस्ट्री की हिस्ट्री के यूसेज स्टैट आ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्ट है स्ट्रक्ट में सारी जो फील्ड्स हमें जो आउटपुट में हम शो करते हैं स्ट्रक्ट के अंदर ये यूजर स्ट्रक्ट है हमने फाइल में रखा हुआ है इसकी डेफिनेशन यूजर को प्रोवाइडेड होती है वो सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता है ये गिवन कंस्ट्रेंट के साथ जो आउटपुट आएगा। तो ये सी एपीआई का भी सपोर्ट है हमारे सिस्टम में। इसकी टेस्टिंग के लिए टेस्ट प्रॉक्स में यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस ये टेस्ट एग्जीक्यूटेबल है वेलिसी सी एपीआई उसके थ्रू हम टेस्ट भी कर सकते हैं सी एपीआई पर वेरियस कमांड्स पड़ी हुई है इसकी यूजर स्टार्ट नॉर्मल भी वेलिसी की कमांड्स है यूजर स्टार्ट गेट डिजाइन फॉर गेट सेशन इन्फो सकती है। तो जनरल सी एपीआई सिस्टम के लिए पड़ा हुआ है। दिस कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स। टेस्ट प्रो वाली सर रन कैसे होती है क्या अजय जो टेस्ट प्रो वाली सी पे ये रन कैसे होती है ये एग्जीक्यूटेबल जब बिल्ड करते हो सैंडबॉक्स तो एक अच्छा। एग्जीक्यूटेबल मतलब सैंडबॉक्स ब्लू के साथ नहीं होती है ब्लू में ये अलग से मतलब ये यूजर की एग्जीक्यूटेबल नहीं ना हम शिप नहीं करते ना इसको हाँ तो जी ये आपको अलग से बिल्ड करनी पड़ती है ये एग्जीक्यूटेबल का नाम है। तो आप देखोगे तो इसमें वो क्या करता है डिजाइन पाथ लेता है क्योंकि अगर आप देखोगे ना इस प्रोग्राम में तो क्या करता है वो रिजर्वेशन वगैरह करता है। ये हाँ नहीं मैं इनपुट तो वो में जानना कि क्रॉस रन कैसे होती है ये बस कैसे रन कर सिंपल चला दिया मैंने इसी एक ये प्रोजेक्ट फाइल दे दी ये पहले और ये एक बिल्ड अपने कनेक्शन बना बनाता दिया है बिल्ड करोगे आप मतलब ये ब्लू जो टारगेट है ना हमारा उसमें ये वाली ये एग्जीक्यूटेबल पड़ी नहीं हुई है इसके अंदर तो उसको बिल्ड करने तो का क्या ये होता है बस यही करो जो स्लैश बिल्ड होता है अच्छा अच्छा एग्जीक्यूटेबल का नाम है बस यही है बस ऐसे ही ये पे करो करके चला ठीक है एक एग्जीक्यूटेबल है। तो कई सारे एग्जीक्यूटेबल जो टेस्ट प्रॉक्स के अंदर जो हमारी जो फाइल्स होती है ना जो हमारी ये हमारे खुद की टेस्टिंग के लिए हमने जनरली होती है हमारी हमने खुद से ही लिखी होती है। ठीक है में जनरली वेल्डन वेल्डन की भी बहुत सारे थे वेलिसी चेक एंड रिजर्व है बहुत सारी चीजें हैं वेल्डन सी एपीआई है वेल्डन लाइट कई सारी चीजें हैं जिसमें पड़ी होती है ये सब हमारी खुद की होती है शिप नहीं होती कस्टमर को तो ये हमें खुद बिल्ड करनी होती है। एनी क्वेश्चंस और अदरवाइज ईएसडीबी तो आई थिंक कवर हो गया।
ठीक है यार फिर ओके थैंक यू गाइस बाय थैंक यू थैंक यू सर।